درج ذیل مضمون الفاظ پر مشتمل ہے۔ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں، انسانی زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام اور ہر کوشش اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش ضروری ہے، مگر اکثر لوگ صرف عظیم بلند و بالا کاموں کو ہی اہم سمجھتے ہیں اور چھوٹے معمولی روزمرہ کے کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ایک ایسا اصول ہے جو نہ صرف فرد کی ذاتی ترقی کے لیے ضروری ہے بلکہ معاشرے کے بہتر اور متوازن رہنماؤں کے لیے بھی بنیاد ہے۔ یہ مضمون اس خیال کو تفصیل سے بیان کرے گا کہ کیوں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں۔ سب سے پہلے روزمرہ کے چھوٹے کاموں کی اہمیت پر غور کر۔ صبح اٹھ کر اپنے کمرے کو صاف کرنا، ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، کسی بوڑھے کا راستہ کھولنا، یہ سب چھوٹے مگر بااثر اعمال ہیں۔ یہ اعمال نہ صرف فرد کی عادتوں کو سنوارتے ہیں بلکہ سماج میں تعاون اور احترام کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ جب ایک انسان چھوٹے کاموں میں ذمہ داری دکھاتا ہے تو وہ ایک بڑے اعتماد اور نظم و ضبط کا حامل بن جاتا ہے، جو اسے مستقبل میں بڑے فرائض کی انجام دہی کے قابل بناتا ہے۔ اسی طرح بچہ جو اسکول میں اپنی میز کا خیال رکھتا ہے یا اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ ٹیم ورک اور مشترکہ کامیابی کو سمجھنا سیکھتا ہے، جو آگے چل کر اس کی زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر بڑا کام دراصل کئی چھوٹے کاموں کے ملاپ سے بنتا ہے۔ ایک عمارت کی تعمیر کو ہی لے لیں، اس کی بنیاد رکھنے سے لے کر اوپر تک پہنچنے تک بے شمار چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اور محنت درکار ہوتی ہیں۔ اگر محنت کش مزدور، معمار، انجینئر اور معلقین میں سے کوئی ایک بھی کام کی قدر نہ کرے تو پوری عمارت کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سائنس کی کوئی بڑی دریافت بھی محض ایک لمحے کی شاندار کامیابی نہیں بلکہ سینکڑوں تجربات، غلطیوں اور چھوٹے اصلاحات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ظاہر کرتا ہے کہ عظیم کامیابیاں مسلسل چھوٹے اقدامات کے بغیر ممکن نہیں ہو۔ تیسرا اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر سے بھی یہ خیال مضبوط ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں۔ ہر مذہب اور اخلاقی نظام سخاوت، خدمت اور عاجزی کو سراہتا ہے۔ خدمت خلق، دوسروں کی مدد اور عاجزی سے کیے گئے کام روح کو سکون دیتے ہیں۔ بزرگان دین کی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ چھوٹے مگر خلوص نیت سین بڑیے کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک بڑی قدر رکھتے ہیں۔ ابن اکرم کی سیرت میں ہمیں بار بار ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں چھوٹے روزمرہ کے اعمال جیسے مسکان کرنا، صف میں رہنا، کسی کی ضروریات کا خیال رکھنا بڑے ثمرات کے حامل ثابت ہوئے اور معاشرتی اچھائی میں اضافہ کیا۔ چوتھا پہلو خود اعتمادی اور ذاتی ترقی کا ہے۔ جب ہم چھوٹے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں اور انہیں شاندار طور پر انجام دیتے ہیں تو ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر بار جب ہم کسی معمولی ذمہ داری کو بہترین انداز میں انجام دیتے ہیں تو ہماری توجہ سبق اور تفصیل پر نظر بہتر ہوتی ہے۔ یہ عادتیں وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہیں اور ہمیں بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی۔ آواق طالب علم جو روزانہ چھوٹے ہوم ورک کو باقاعدگی سے مکمل کرتا ہے جلد ہی بڑی تحقیق امتحان کے لیے خود کو تحلیل اور منظم پائے گا۔ اسی طرح ایک ملازم جو چھوٹے کاموں میں ایمانداری دکھاتا ہے مستقبل میں اعتماد کی بنیاد پر بڑے منصبوں کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ پانچواں ہے سماجی اعتبار سے چھوٹے کام معاشرتی ہم آہنگی کا سبب بنتے ہیں۔ غور کریں کہ ٹریفک کی روانی، دلی کی صفائی یا کمیونٹی میں چھوٹے فلاحی کام، یہ سب مل کر ایک بہتر شہر گاؤں بناتے ہیں۔ اگر ہر فرد یہ سوچے کہ میرا چھوٹا عمل دوسرے کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے تو مجموعی طور پر بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت سی سماجی تحریکیں اسی فلسفے پر قائم ہوتی ہیں جہاں عام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اقدامات ایک بڑی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ ریسائکلنگ، صفائی مہمات، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے دی جانے والی مفت تعلیم، سب چھوٹے مگر مستقل اقدامات ہیں جو مستقبل میں بڑے سماجی فوائد کا باعث بنتے ہیں۔ چھوٹے کاموں کی قدر کرنے کا ایک اور عملی فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کام کی نوعیت چھوٹی یا بڑی صرف ہمارے رویے سے طے ہوتی ہے تو ہم اپنے اندر تکبر کم کرتے۔ انسان جو دوسرے لوگوں کے چھوٹے کاموں کو حقیر سمجھتا ہے عموماً اپنی قوت کا غلط استعمال کرتا ہے یا دوسروں کے کام کی قدر نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جو شخص ہر کام کو عزت دیتا ہے وہ بہتر ٹیم پلیئر بنتا ہے اور دوسروں کی عزت بھی کماتا ہے۔ ورک میں یہ رویہ بہت ضروری ہے۔ ہر شعبے میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو ٹیم کے ہر رکن کی کوششوں کو سراہتا ہے اور چھوٹے کاموں کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ مثالوں کی طرف چلتے ہیں جہاں چھوٹے کاموں نے بڑا فرق پیدا کیا۔ تاریخ میں ایسے کئی کردار ملتے ہیں جن کے ابتدائی دن معمولی خدمات پر مبنی تھے مگر بعد میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔
میدان میں بہت سے عظیم ڈاکٹروں نے اپنے کیریئر کی شروعات نرس معمولی طبی عملہ کی حیثیت سے کی، جہاں انہوں نے صبر، محنت اور مریضوں کی خدمت کے جذبے کو اپنایا۔ ان تجربات نے انہیں بہترین طبی ماہرین بنایا اور بعد میں ان کی شناخت اسی محنت کی بنا پر ہوئی۔ اسی طرح معاشرتی رہنماؤں میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی پہلی ذمہ داری عوام کے چھوٹے مسائل حل کرنا ہوتا ہے، اور انہی سے ان کی قیادت کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ دوستی اور خاندان کے تعلقات میں چھوٹے اعمال کا کردار ہے۔ بے کبھار ایک چھوٹا سا پیام، ایک فون کال، گھر کے کام میں چھوٹا تعاون رشتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ محبت کے اظہار میں بڑے تحائف ہمیشہ ضروری نہیں، ایک چھوٹی خدمت جیسے کسی کے لیے کھانا پکانا، پریشان وقت میں ساتھ دینا، اس سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلقات میں چھوٹے مگر باقاعدہ اعمال قابل قدر ہوتے ہیں اور دیر پا محبت اور اعتماد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہاں ایک تنقیدی نکتہ بھی قابل ذکر ہے۔ چھوٹے کاموں کا احترام کرتے ہوئے ہمیں انہیں صرف انجام دینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور نئی حکمت عملی اپنانے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ چھوٹی کاموں میں مہارت حاصل کرنا اچھی بات ہے، مگر اس سے آگے بڑھتے ہوئے بڑے منصوبوں، سوچ اور قیادت کی طرف قدم اٹھانا بھی ضروری ہے۔ توازن بہت اہم ہے۔ چھوٹے کام ہمیں مضبوط بناتے ہیں، مگر بڑے مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں دور اندیشی، حکمت اور محنت کو ملانا ہوگا۔ چھوٹی کاموں کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں جدید معاشی اور تکنیکی دنیا کا بھی ذکر کرنا ہوگا۔ موجودہ دور میں آٹومیشن اور ٹیکنالوجی نے بہت سے روٹین کام خود انجام دینا شروع کر دیے، مگر کچھ چھوٹے کام ایسے ہیں جن کی جگہ مشینیں نہیں لے سکتی، جیسے ہمدردی، جذباتی سمجھ، بوجھ اور انسانوں کے درمیان ذاتی رابطہ۔ سافٹ ویئر روبوٹ کسی کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کر سکتے، کسی کے ہاتھ پکڑ کر تسلی نہیں دے سکتے، لہذا چھوٹے مگر انسانی رابطے والے اعمال کی قدر بڑھ گئی ہے۔ معاشرے میں وہ لوگ جو یہ مہارت رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ دل سے میل جول رکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت، وہ نہ صرف ذاتی طور پر کامیاب ہوتے ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی مثبت تبدیلیاں لا سکتے۔ آسان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں چھوٹے کاموں کی قدر ایک عملی فلسفہ ہے جو روزانہ کی زندگی میں بہتر نتائج لاتا ہے۔ تعلیم نظام میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو طلبہ معمولی اسائنمنٹس، پریکٹیکل ورک اور روزمرہ کی تیاری کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، وہ بڑی تحقیق اور پروجیکٹس میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے کام ہمیں باقاعدگی، وقت کی پابندی اور خود پر قابو پانے کی عادت دیتے ہیں۔ یہ عادات پھر بڑے چیلنجز میں ہمارے لیے مضبوطی کا سبب بنتی ہیں۔ بہت سے کامیاب افراد نے اپنی کہانیوں میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ کیسے چھوٹے قدم اور چھوٹے فیصلے ان کے لیے بڑی کامیابیوں کا راستہ بنے۔ کاروبار دنیا میں بھی چھوٹے فیصلے اکثر بڑے نتائج کا سبب بنتے۔ کاروباری منصوبہ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے روزمرہ کے چھوٹے مالی فیصلے، صارف کی شکایات کا بروقت حل اور ملازمین کے چھوٹے مگر باوقار طریقے شامل ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی جس میں ہر ملازم اپنے چھوٹے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے، وہ مجموعی طور پر اپنے کلائنٹس کو بہتر سروس مہیا کر سکتی ہے اور برانڈ کی ساکھ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب معمولی چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں تو آخرکار بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا مینجمنٹ اور قیادت کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کاموں کی اہمیت کو تسلیم کریں اور ہر سطح پر معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ تعلیم کے میدان میں اس اصول کا اطلاق خاص طور پر اہم ہے۔ اساتذہ جو ہر بچے کے چھوٹے کام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ نہ صرف تعلیمی معیار بہتر بناتا ہے بلکہ بچے میں خود اعتمادی اور دلچسپی بھی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد جو کلاس میں منتظم طریقے سے رول ہوم ورک چیک کرتا ہے، بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، جو آگے چل کر ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح طلبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چھوٹے اہداف مقرر کریں اور انہیں کامیابی سے حاصل کرنے کی عادت بنائیں تاکہ بڑے اہداف کا بوجھ آسان محسوس ہو اور مستقل ترقی ممکن ہو۔ صحت اور تندرستی بھی ایسے شعبے ہیں جہاں چھوٹے اعمال بڑے فوائد لاتے۔ روزانہ تھوڑی سی ورزش، مناسب نیند اور صحت بخش غذا کے معمولات کو اپنانا لمبے عرصے میں بڑی بیماریاں روک سکتا ہے اور ماوار زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ لوگ عموماً بڑی تبدیلیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر چھوٹے مگر مستقل عادات ہی طویل مدتی کامیابی کا راز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز اور ماہرین
सेहत भी यही मशवरा देते हैं कि ज़िंदगी में छोटे मगर मुस्बत रवैयों को अपनाया जाए ताकि मुस्तक़बिल में बड़े मसाइल से बचा जा सके। तकन का तरक्की के दौर में इखलाकी और इंसानी अक़दार फ़रोग़ भी इसी उसूल से मुमकिन है कि मुआशरे के हर फ़र्द के छोटे काम जैसे ईमानदारी, वादे की पासदारी और वक्त की पाबंदी को अहमियत मिलती है तो मजमूई तौर पर माशी और समाजी तरक्की मुमकिन होती ही। चरिती रवैये जैसे शफाफियत, छोटे वादों को पूरा करना और दूसरों के हुकूक का एहतराम एक मजबूत मुआशरती ढांचे की बुनियाद है। ये रवैये बड़े क़वानीन और इदारों के अंदर भी मुस्बत फ़र्क पैदा करते हैं, क्योंकि हर फ़र्द जब छोटी सतह पर दियानतदारी इख्तियार करता तो बड़े पैमाने पर एतमाद पैदा होता है। इस तरह छोटा काम और खिदमत करने का फ़रोग़ ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में अहम है। नौजवान अगर अपनी जवानी में छोटे कामों को मामूल बना लें, जैसे रज़ाकाराना खिदमत, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, अपने ख़ानदान में मदद, वो मुस्तक़बिल में ज़िम्मेदार शहरी बनकर उभरते हैं। नौजवानों की कोचिंग और रहनुमाई में इस बात को शामिल करना कि हर काम की कदर करें उन्हें कायदाना खुसूसियात सिखाता है और उन्हें बड़ा सोचने के काबिल बनाता है। इससे नौजवानों में मुस्बत सोच और अमल पैदा होता है जो मुल्क व कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है। आखिर में छोटे कामों की सकाफत को घर, स्कूल और मुआशरती इदारों में फ़रोग़ देना ज़रूरी है। वालिदैन अपने बच्चों को मिसाल बनाकर ये दिखा सकते हैं कि रोज़मर्रा के छोटे अमाल किस कदर अहम आवा। स्कूल और कॉलेज अपने निसाब में अमली ज़िंदगी के छोटे मगर ज़रूरी को शामिल कर कम्युनिटी यूनियंस और मकामी सतह पर चलने वाली मुहिमात छोटे कामों के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं। एक इज्तिमाई कोशिश के ज़रिए हम एक ऐसा मुआशरा तामीर कर सकते हैं जहां हर फर्द अपने छोटे किरदार को अहम समझे और बेहतरीन अंदाज में अदा करे। ये मज़मून इस बुनियादी पैगाम के साथ ख़त्म होता है कि अज़मत का रास्ता छोटे कदमों से होता है। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश और हर छोटा अमल आखिरकार एक बड़े नतीजे में बदल जाता है। लिहाजा आज से अपने रोज़मर्रा के छोटे कामों को संजीदगी से लें, उन्हें बेहतरीन अंदाज में करें। अलिफ वर दूसरों को भी इसी सोच की तरगीब दें। उन्वान, कोई भी काम छोटा नहीं। तारुफ, ये दुनिया इसी पर कायम है जिसने मेहनत की कदर की। खेतों से हासिल होने वाला अनाज हो या किसी उस्ताद की रहनुमाई, हर काम अपनी जगह काबिल एहतराम है। आम फहम जुमला कोई भी काम छोटा नहीं महज एक मुहावरा नहीं बल्कि एक फिक्री उसूल है जो फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए रहनुमाई फराहम करता है। इस मज़मून में हम इस बात की वजाहत करेंगे कि क्यों हर काम की कदर ज़रूरी है। मजहबी, इखलाकी और माशी नुक्ताए नज़र से इसकी अहमियत क्या है और रोज़ मर्रा ज़िंदगी में इस उसूल को किस तरह अपनाया जा सकता है। इस्लाम मिलता है नज़र। इस्लाम ने मेहनत और जायज़ रोज़ी कमाने को न सिर्फ जायज़ बल्कि बाबरकत और आला दर्जा दिया ही। रोज़गार को इबादत में तब्दील करने का बुनियादी तरीक़ा नियत की सफाई और जायज़ ज़राए से कमाई है। अगर इंसान नियत से अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करे तो उसकी रोज़ी भी इबादत के तौर पर कबूल हो सकती है। ये तसव्वुर इस्लामी तालीमात में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि मेहनत के ज़रिए मुआशरे की खिदमत एक नेकी है और कोई काम हक़ीर अशरनाक नहीं। सलाम बिन लाइन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशादात में भी इसी बात की अक्कासी मिलती है। अच्छे अमाल के किसी हिस्से को छोटा ना समझो क्योंकि छोटा बड़ा बन जाता है। यानी छोटे से छोटा अमल भी अगर सही नियत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो तो बड़ा नतीजा दे सकता है। ये फिक्र हमें बताती है कि हम अपने छोटे रोज़मर्रा के कामों को भी नज़रअंदाज न करें। हदीसों और फ़क़ीही कुतुब में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि इज़्ज़त और वक़ार मेहनत करने वालों के साथ है। बैठकर दूसरों पर मुनहसिर रहना, नाजायज़ तरीक़ों से दौलत कमाना मज़मूम समझा जाता है। अच्छी कमाना, हलाल रोज़ी तलाश करना और मेहनत को कदर की निगाह से देखना ईमान की अमली सूरत है। मुआशरती और इखलाकी अहमियत, जब मुआशरे में हर किस्म की मेहनत की इज़्ज़त की जाती है तो समाजी ताने बाने मजबूत होते हैं। इज़्ज़त नफ़स और ख़ुद इन्हिसारी का एहसास पैदा होता है। लोग इश्तिराक करते हैं और माशी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। बरक्स सूरत में जब किसी पेशे को हक़ीर समझा जाए तो इससे तबक़ाती तफ़रीक़ बढ़ती है, मज़दूर तबके की तौहीन होती है और निजता मुआशरा टूट-फूट का शिकार हो सकता है। काम का अपना मख़सूस किरदार होता है। सफाई करने वाला शहर को साफ रखता है, किसान खुराक फराहम करता है, उस्ताद नस्लों की रहनुमाई करता है, तबीब लोगों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगर हम उन कामों को छोटा समझी तो हम बुनियादी ढांचे की कदर खो देते हैं। तारीख़ी तौर पर भी वो कौमें तरक्की करती हैं
जिन्होंने मेहनत और हुनर को इज्जत दी, सनत ज़राअत और तालीम में सरमायाकारी से तवील अलमुद्दती खुशहाली मुमकिन हुई है। ये तसव्वुर आम माशी मुतालों और ताफ़ुन मुआशरत से भी साबित होता है। इनफरादी फ़वाइद, ज़ाती सतह पर मेहनत और किसी भी काम की कदर करने से कई फ़वाइद मिलते हैं। खुद एतमादी बढ़ती है, नज़्म व ज़ब्त आता है और इंसान माशी तौर पर खुद मुख्तार बनता है। छोटे काम भी बड़े हुनर में तब्दील हो सकते हैं। मुसलसल कोशिश, ईमानदारी और लगन के ज़रिए आदमी अपनी जगह बेहतर बना सकता है। इलावा अज़ीम रोज़गार के ज़रिए इंसान मुआशरती फलाह व बहबूद में हिस्सा दे सकता है, ख़ानदान का कफ़ील बन सकता है और दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है। तालीम और महारत, रुकावटें और मौक़े अक्सर छोटा काम समझने का सबब जहालत असमाजी तासुबात होते हैं। बेहतर है अगर तालीमी निज़ाम और तरबियती प्रोग्राम ऐसे हों जो मुख्तलिफ शुबों में महारत फराहम करें और हर पेशे को वक़ार की से देखें। अमली तालीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, फ़न्नी हुनर और छोटे कारोबार को फ़रोग़ देने से लोगों को न सिर्फ रोज़गार मिलता है बल्कि वो मुआशरे में इज़्ज़त के साथ अपना हिस्सा भी डालते। हुकूमत, गैर सरकारी तंजीमें और कम्युनिटी लीडर्स मिलकर इस सोच को तब्दील कर सकते हैं कि कुछ काम कम अहम आवे अमल। मिसालें और कहानियाँ, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मिसालें देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि कोई काम छोटा नहीं। एक सड़क पर काम करने वाला मजदूर जब बारिश में सड़क बनाने में लगा होता है तो वो शहर के लाखों लोगों के लिए सहूलत पैदा कर रहा होता है। एक स्कूल का चौकीदार बच्चों की हिफाजत और इदारे की हिफाजत के लिए जिम्मेदार होता है। घर में माँ की मेहनत, चाहे वो खाना पकाना हो या बच्चों की परवरिश, एक पूरे खानदान के रोड़े उठाने के बराबर होती है। ये छोटी छोटी मेहनतें इज्तिमाई जिंदगी को मुमकिन बनाती हैं और उनकी कदर हम सबको करनी चाहिए। माश नुक्ताए नज़र, छोटे काम और तरक्की। माशी तरक्की के लिए इंसानी वसाइल की मुकम्मल शमूलियत ज़रूरी है। जब हर किस्म के काम को वक़ार मिला तो लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करने लगते हैं, पैदावार बढ़ती है और मजमूई खुशहाली मुमकिन होती है। छोटे कारोबार और रोज़गार के ज़राए मुआशरे में आमदनी की मुनसिफाना तकसीम में मदद देते हैं। इसके बरअक्स अगर किसी अहम शोबे को बदनाम किया जाए या इज्तिनाब किया जाए तो माशी दबाव बढ़ता है और इन्हिसार चंद शोबों पर बढ़ जाता है जो माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करता है। और अखलाक, काम को इबादत में बदलना। इस्लामी अखलाक हमें सिखाते हैं कि नीयत सब कुछ बदल देती है। अगर एक कम तनख्वाह वाला मजदूर भी अपनी मेहनत को अल्लाह की रज़ा के लिए करे तो उसका काम इबादत बन जाता है। इसी तरह उस्ताद, डॉक्टर, किसान, दुकानदार, हर वो शख्स जो ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, अपनी नीयत से अपने अमाल को मानवी कदर दे सकता है। इस नुक्ताए नज़र से कोई भी काम छोटा नहीं का मफहूम मजबूत अंदाज में सामने आता है। छोटा या बड़ा दरअसल नीयत और नताइज का सवाल है। अदबी और सकाफती नुक्ताए नज़र, अदब और शायरी में भी मेहनत और आम आदमी की इज्जत को बड़े एहतराम के साथ बयान किया गया है। उर्दू शायरी और गज़लों में मेहनत, हौसले और खुदी के मौज़ूआत बारहा मिलते हैं। ऐसे अशार और अक़वाल नौजवानों में मेहनत की हौसला अफजाई करते हैं और पेशा वराना वक़ार को उजागर करते। आओ मजदूरों है के दिन, लेबर डे जैसे मौक़े भी मुआशरती सतह पर मेहनत कशों की कदर को तस्लीम करने का ज़रिया बनते हैं। अमली तजावीज़, स्कूल, घर और कम्युनिटी के लिए एक तालीमी निसाब में अमली हुनर और वर्कशॉप्स शामिल करें ताकि बच्चों को मुख्तलिफ पेशों का तजर्बा हो। 2. घरों में वालिदैन बच्चों को हर किस्म के काम की कदर सिखाएं। सफाई, खाना पकाना, छोटा सा हाथ बटाना इज़्ज़त मेहनत का दर्स देता है। 3. कम्युनिटी लेवल पर ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करें जिनमें मुख्तलिफ शुबों के मेहनत कशों को उनकी खिदमात के लिए सराहा जाए। मीडिया और अदब में मजदूर, किसान और आम कारकुनों की ज़िंदगी के मुस्बत पहलू सामने लाएं ताकि मुआशरती रवैयों में तब्दीली। मुखालिफ ख़यालात का जवाब, कुछ लोग कहते हैं कि माशी तरक्की के लिए सिर्फ आला तालीम और सफ़ेद कालर मुलाजमतें अहम हैं, मगर तारीख और मौजूदा माशी तजर्बात बताते हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए हर तबके का किरदार ज़रूरी है। सफ़ेद कालर काम तब तक कामयाब नहीं होता जब तक नीचे की सतह पर काम करने वाले लोग मौजूद न हों। तामीर, सफाई, खुराक की पैदावार और बुनियादी सहूलियात के अहलकार, लिहाजा हर काम का एहतराम माशी हिकमत अमली का हिस्सा होना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं, एक इखलाकी, दीनी और अमली उसूल है जिसे अपनाना न सिर्फ फ़र्द की शराफत और इज़्ज़त के लिए ज़रूरी है बल्कि मुआशरती हमारे और
इक्तिसादी तरक्की के लिए भी लाजमी है छोटे से छोटा अमल भी जब ईमानदारी, नियत और लगन के साथ किया जाए तो वो बड़ा असर डाल सकता है। हमें चाहिए कि हम खुद अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, अपने घर, स्कूल और काम की जगह पर हर मेहनत को इज्जत दें और बच्चों को यही सबक सिखाएं कि मेहनती इंसान अपनी अजमत खुद बनाता है। इस तरह एक बाइज्जत, बाहिकमत और खुशहाल मुआशरा वजूद में आएगा जब हर फर्द अपनी मेहनत के जरिए खुद को और दूसरों को फायदा पहुंचाएगा। सलाम बिन लाइन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर एक बच्चों के लिए आसान किस्म कहानी या यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट 5-7 मिनट भी लिख कर दे सकता /60/2 कौन सा वर्जन चाहेंगे तो वो मैं बना दूंगा। दर्ज झैल मजमून अल्फाज पर मुश्तमिल है। कोई भी काम छोटा नहीं। इंसानी जिंदगी का हर लम्हा, हर काम और हर कोशिश अपनी जगह अहमियत रखती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े मकासद हासिल करने के लिए मेहनत और कोशिश जरूरी है, मगर अक्सर लोग सिर्फ अजीम या बुलंद व बाला कामों को ही अहम समझते हैं और छोटे मामूली या रोजमर्रा के कामों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोच गलत है। कोई भी काम छोटा नहीं। एक ऐसा उसूल है जो न सिर्फ फर्द की ज़ाती तरक्की के लिए ज़रूरी है बल्कि मुआशरे के बेहतर और मुतवाज़िन रहनुमाओं के लिए भी बुनियाद है। ये मज़मून इस ख्याल को तफसील से बयान करेगा कि क्यों कोई भी काम छोटा नहीं। सबसे पहले रोज़मर्रा के छोटे कामों की अहमियत पर गौर कर। सुबह उठकर अपने कमरे को साफ करना, के कामों में हाथ बटाना, बूढ़े का रास्ता खोलना, ये सब छोटे मगर बासर अमाल हैं। ये अमाल न सिर्फ फर्द की आदतों को संवारते हैं बल्कि समाज में ताउन और एहतराम के जज्बे को फरोग देते हैं। जब एक इंसान छोटे कामों में जिम्मेदारी दिखाता है तो वो एक बड़े एतमाद और नज़्म व ज़ब्त का हामिल बन जाता है जो इसे मुस्तक़बिल में बड़े फ़राइज़ की अंजामदही के काबिल बनाता है। इसी तरह बच्चा जो स्कूल में अपनी मेज़ का ख्याल रखता है या अपने हम जमातों के साथ ताउन करता है वो टीम वर्क और मुश्तरका कामयाबी को समझना सीखता है जो आगे चलकर इसकी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। दूसरा नुक्ता यह है कि हर बड़ा काम दरअसल कई छोटे कामों के मिलाप से बनता है। एक इमारत की तामीर को ही ले लें, इसकी बुनियाद रखने से लेकर ऊपर तक पहुंचने तक बेशुमार छोटी छोटी जिम्मेदारियां और मेहनत दरकार होती हैं। अगर मेहनत किश मजदूर, मेमार, इंजीनियर और मुअल्लिफ़ीन में से कोई एक भी काम की कदर न करे तो पूरी इमारत का मंसूबा नाकाम हो सकता है। इसी तरह साइंस की कोई बड़ी दरियाफ्त भी महज एक लम्हे की शानदार कामयाबी नहीं बल्कि सैकड़ों तजुर्बात, गलतियों और छोटे इस्लाहात का नतीजा होती है। ये सिलसिला जाहिर करता है अजीम कामयाबियां मुसलसल छोटे इक़दामात के बगैर मुमकिन नहीं हो। तीसरा, इखलाकी और रूहानी नुक्ता नज़र से भी ये ख्याल मजबूत है कि कोई भी काम छोटा नहीं। हर मजहब और इखलाकी निज़ाम सखावत, खिदमत और आजिज़ी को सराहता है। खिदमत खुल्क दूसरों की मदद और आजिज़ी से किए गए काम रूह को सुकून देते हैं। बुजुर्गान दीन की मिसालें हमें बताती हैं कि छोटे मदद, खुलूस नियत, सीन बढ़िए किए गए अमाल अल्लाह के नज़दीक बड़ी कदर रखते हैं। निबुन अकरम की सीरत में हमें बार बार ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ छोटे रोज़मर्रा के अमाल जैसे मुस्कान करना, सफ में रहना, किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखना बड़े सम्राट के हामिल साबित हुए और मुआशरती अच्छाई में इजाफा किया। चौथा पहलू खुद एतमादी और ज़ाती तरक्की का है। जब हम छोटे कामों को अहमियत देते हैं और उन्हें शानदार तौर पर अंजाम देते हैं तो हमारी सलाहियतों में इजाफा होता है। हर बार जब हम किसी मामूली जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में अंजाम देते हैं तो हमारी तवज्जो, सब्र और तफसील पर नज़र बेहतर होती है। ये आदतें वक्त के साथ मजबूत होती हैं और हमें बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती। आवाज़ तालिब इल्म जो रोज़ाना छोटे होमवर्क को बाकायदगी से मुकम्मल करता है जल्द ही बड़ी तहकीक आ इम्तिहान के लिए खुद को तहलील और मुनज़्ज़म पाएगा। इसी तरह एक मुलाजिम जो छोटे कामों में ईमानदारी दिखाता है मुस्तक़बिल में एतमाद की बुनियाद पर बड़े मनसबों के लिए मुंतखब होता है। पांचवा है समाजी एतबार से छोटे काम मुआशरती हम आहंगी का सबब बनते हैं। गौर करें कि ट्रैफिक की रवानी, दिल्ली की सफाई या कम्युनिटी में छोटे फलाही काम, ये सब मिलकर एक बेहतर शहर या गाँव बनाते हैं। अगर हर फर्द ये सोचे कि मेरा छोटा अमल दूसरे के लिए किस तरह फ़ायदा मंद हो सकता है तो मजमूई तौर पर बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत सी समाजी तहरीकें इसी फ़लसफ़े पर कायम होती हैं जहां आम लोगों के छोटे छोटे इक़दामात एक बड़ी तब्दीली का सबब बनते हैं। रिसाइकलिंग, सफाई मुहिमात, पढ़े लिखे लोगों की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त तालीम, सब छोटे